में कांग्रेस और उसके सहयोगी दल है। सबसे बड़ी पार्टी देश की थी, वो आज अपने इतिहास में सबसे कम सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बंगाल के अंदर हम देखते हैं कि ममता दीदी का राज है और ममता दीदी इंडिया ब्लॉक के साथ कदम ताल कर रही है, परंतु बंगाल की 42 सीटें ममता दीदी अपने दम पर लड़ रही है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी का परचम है, परंतु लोकसभा के लिए उन्होंने 4-3 की श्रेणी में सीटों का बंटवारा किया। पंजाब के अंदर सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने इंडिया ब्लॉक की कांग्रेस पार्टी को गठबंधन से दूर रखा। अगर गुजरात में गठबंधन हो सकता था, अगर गोवा में गठबंधन हो सकता था, तो पंजाब में वह गठबंधन फायदा होगा। जिस तरीके ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਖਤਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਮੁੱਦਾ ਖਤਮ है। कि वह फैसला करेंगे न केवल उनके सांसद का, न केवल देश के प्रधानमंत्री का, अपितु भारत के भविष्य का फैसला जो है वह जनता की उंगली के माध्यम से। ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਛੇੜ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਕਿ ਜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 2 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਠੇਗੀ। अगर कोई भी व्यक्ति इस लक्ष्मण रेखा को पार करेगा तो उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੈ, ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮੈਜੋਰਟੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰਾਮ ਦਾ ਪੱਤਾ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ, ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਪੱਤਾ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ठीक ਐਨ वक्त। जिन रामलला को अनेकों वर्ष तक टेंट के अंदर बैठना पड़ा था, उनको आज अपने घर के अंदर एक मंदिर के स्वरूप के अंदर विराजमान किया गया है, प्राण प्रतिष्ठा की गई है और हमको लगता है कि यह विषय ਐਡਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਸਥਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣ ਪਾਲ ਦੇਵੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਰਾਮ ਛੋਟੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਈਵੈਂਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ, ਉਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਰਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਆਪਣੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਆਪਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। 2 ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਾਕਈ ਦੇਸ਼ शक्तिशाली हथों दे विच कि भारत आज 5वें पायदान पर आ चुका है विश्व के। अगर हम इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहे तो जर्मनी और जापान को पिछाड़ते हुए वो दिन दूर नहीं जब हम तीसरे पायदान पर आ जाएंगे। 80 करोड़ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹ ਖਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 5ਵੇਂ ਪਾਇਦਾਨ ਤੇ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਨੀਂਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਮੋੜ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ। और वो प्रोडक्शन न केवल भारतीयों का पेट भर रही है, अपितु विश्व की एक बड़ी जनसंख्या के लिए भोजन की उपलब्धता भारत देश आज करा रहा है। ਇਹ ਭਾਰਤ ਜਿਹਨੂੰ ਅਨਾਜ ਜਾਂ ਅੰਨਦਾਤਾ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਨ ਦੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਨਾਜ ਮੰਗਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। 18ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 6ਵੇਂ ਪੜਾਅ ਦੀਆਂ VOTING ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਬੜੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ 400 ਪਾਰ ਦਾ ਨਾਅਰਾ BJP ਲਈ ਸਿਖਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਰੋਕ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਭਰਤ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾਅ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ? ਜੋ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਆਨ ਨੇ? ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ?
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ? ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਭਰਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ। धन्यवाद रमनदीप जी। SM TV के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। किस तरीके ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਲਹਿਜੇ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 400 ਪਾਰ ਦਾ ਨਾਰਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਨਾਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। 6 ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੜਾਅ ਦੀ VOTING ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਜੀ। एनालिसिस की करते हो? जहाँ तक हम 18वीं लोकसभा के चुनाव के बारे में बात करते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि यह चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है और अब तक जितनी 17वीं लोकसभा तक के हमने आम चुनाव देखे हैं उससे हटकर एक चुनाव आज पूरी दुनिया की नज़र इस चुनाव पर है, क्योंकि जहाँ एक और इस चुनाव के माध्यम से अमृतकाल 2047 की नींव रखने की बात की जा रही है, वहीं दूसरी ओर ये बात की जा रही है कि हम नफरत की दुकान, मोहब्बत की दुकान का जो एक शगुफा छोड़ा जा रहा है उसके माध्यम से हम देखते हैं कि एक तरफ 400 पार के नारे के साथ एक आत्मविश्वास झलकता है, वहीं दूसरी ओर देश की सबसे पुरानी पार्टी, देश के अंदर लंबे समय तक राज करने वाली पार्टी आज अपने इतिहास के सबसे न्यूनतम सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए मैदान में है। तो जहां एक और इंडिया ब्लॉक के माध्यम से कांग्रेस का आत्मसमर्पण झलकता है, वहीं इंडिया के अंदर हम देखते हैं जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लीड की जा रही है उसका आत्मविश्वास झलकता है और वह आत्मविश्वास के माध्यम से एक पूर्ण बहुमत की एक अच्छी मेजोरिटी के साथ सरकार बनाने की मंशा के साथ आगे बढ़ रही है। जिस तरीके ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਖਤਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਖਤਮ ਹੈ, ਡਿਗਰੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਖਤਮ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਈ ਕਰੋੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਆ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਛੇੜ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਕਿ ਜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 2 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਠੇਗੀ। एक किस तरीके ਨਾਲ देखते हो ਵੱਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ टच तक नहीं कर रहे? नहीं, जहां तक बड़े मुद्दों की बात है तो हमको लगता है कि जिस प्रकार से हम जातिवाद की बात करते थे कल तक और हम बात करते थे कि हमारे देश के अंदर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन 4 श्रेणियों में हम अपनी जातियों को बांटते थे। हमने देखा कि इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जातियों की नई परिभाषा हम सबके सामने रखी, जिसके माध्यम से उन्होंने बोला आज सबसे महत्वपूर्ण 4 जातियां हैं। पहली जाति है महिला, दूसरी जाति है युवा, तीसरी जाति है गरीब और चौथी जाति है किसान। तो हमको लगता है महिला, युवा, किसान और गरीब की जो बात प्रधानमंत्री रखते हैं उसके माध्यम से कोई भी ऐसा महत्वपूर्ण विषय नहीं है जो अछूता रह जाए। जिस तरीके ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਾਕਈ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਵਾਕਈ ਦੇਸ਼ ਉਸ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਆਫਟਰ ਕੋविड ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਚੈलेंज ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ? अगर हम आर्थिक पैमाने पर भारत को देखते हैं तो हमको देखने को मिलता है कि भारत आज 5वें पायदान पर आ चुका है विश्व के। अगर हम इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहे, अगर इसी रफ्तार से देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती रही तो जर्मनी और जापान को पिछाड़ते हुए वो दिन दूर नहीं जब हम तीसरे पायदान पर आ जाएंगे। पर ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੈਕਸ ਹੈ ਸਾਡਾ ਬਲੋ ਆਫ ਪਾਵਰਟੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 80 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹ ਖਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 5ਵੇਂ ਪਾयदान ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ शिकार है? बिल्कुल, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को छेड़ा है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। जब हम देखते हैं भारत सरकार के द्वारा चलाई गई अनेक स्कीम्स को, चाहे वो स्टार्टअप इंडिया की बात हो, चाहे वो मेक इन इंडिया की बात हो, चाहे वो स्टैंड अप इंडिया की बात हो, चाहे वो डिजिटल इंडिया की बात हो, चाहे वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की बात हो, इन सभी योजनाओं को, इन सभी फ्लैगशिप प्रोग्राम्स को जब हम देखते हैं
तो हमको झलक मिलती है। जो बात आप गरीबी की कर रहे थे, जो बात आप बेरोजगारी की कर रहे थे, उन सब को दूर करने के माध्यम से हमने बोला कि हमको उस प्रकार की जनसंख्या नहीं चाहिए जो नौकरी पाने वालों की कतार में खड़ी हो। भारत की सरकार बोलती है कि हमको उस प्रकार की जनसंख्या तैयार करनी है जिसके अंदर स्किल्स हो, जिसके अंदर इस प्रकार के नैतिक मूल्य हो कि वह आत्मनिर्भर बन सके, और आत्मनिर्भर बनते हुए ना केवल वह अपने ऊपर बोझ हो, ना केवल वह अपने परिवार के ऊपर बोझ हो, ना कि वह देश के ऊपर बोझ हो। पर आबादी तो बहुत बड़ा हिस्सा जेड़ा को सरकार ते निर्भरता बनाता ना, आत्मनिर्भर नहीं बनया, सरकार ते निर्भर बनाता। कुछ ऐसा कहा जाता है, प्रधानमंत्री कहंदे ने 8800 करोड़ लोगों को कुछ रास्ता लिख देगा, कुछ रास्ता लिख देगा, कुछ मैं लिख दूंगा, तुम लिखते जाओ मुश्किल, मैं मंजिल लिख दूंगा। तो ये शुरुआत हुई है, ये आगाज हुआ है, और अंजाम आना अभी बाकी है। हम 5 साल में, हम 10 साल में ਕਿਤੇ ਅਜਿਹੀ ਮੰਜ਼ਲ ਦੀ ਨੀਂਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਜ਼ਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਮੋੜ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇਖੀਏ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭੰਡਾਰਨ ਹੈਗਾ, ਫੂਡ ਭੰਡਾਰਨ ਹੈਗਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਭੰਡਾਰਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ गुजर रहा। नहीं, अगर हम देखते हैं फूड प्रोडक्शन की ओर, तो हम देखते हैं चाहे वो गेहूं की बात हो, चाहे वो बाजरे की बात हो, चाहे और हमारी जो फसल है उसकी बात हो, हमारी जो प्रोडक्शन है, आबादी बढ़ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं, परंतु साथ साथ जो हमने कृषि के अंदर नए नए आयाम स्थापित किए हैं, उन आंकड़ों पे नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी प्रोडक्शन भी बढ़ रही है, और वो प्रोडक्शन ना केवल भारतीयों का पेट भर रही है, अपितु विश्व की एक बड़ी जनसंख्या के लिए भोजन की उपलब्धता भारत देश आज करा रहा है। रूस तो लेना पै रहा सानू अनाज। ਇਹ ਭਾਰਤ ਜਿਹਨੂੰ ਅਨਾਜ ਜਾਂ ਅੰਨਦਾਤਾ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਨ ਦੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਨਾਜ ਮੰਗਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। हमें मंगवाना भी पड़ रहा है और हमें देना भी पड़ रहा है। ये जो एक मिलनसार संबंध है कि जो हम एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स दोनों की बात करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एक ही तरफ देख सकते हैं। जो हम दूसरे देशों को भेज रहे हैं, चाहे उनकी क्लाइमेटिक कंडीशंस ऐसी हैं, चाहे उनका सोयल की क्वालिटी ऐसी है, कि हम ये देख रहे हैं कि जो भारत से आज की तारीख में निर्यात हो रहा है, कृषि उत्पादकों का निर्यात हो रहा है, उसकी संख्या में दिन प्रतिदिन, दर प्रतिदर वृद्धि हो रही है। जिस तरीके ਨਾਲ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਉਛਾਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਈਵੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਈਵੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੈ, ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮੈਜੋਰਟੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰਾਮ ਦਾ ਪੱਤਾ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ, ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਪੱਤਾ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਤੈਨ ਐਨ ਵਕਤ ਹਿੰਦੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟ ਆਪਦੇ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰੇਗੀ बीजेपी ਲਈ। रमनदीप जी, आपने एक राजनीतिक प्रश्न पूछा। हमको ऐसा लगता है कि भारत देश के अंदर राम जो है वह एक आस्था का विषय है। जब हम राम की बात करते हैं तो राम से भारतीयों का दिल जुड़ा हुआ है, और जब राम का विषय निकल कर आता है तो यह विषय किसी वोट की राजनीति से संबंध नहीं लगता, अपितु जिन राम लला को अनेकों वर्षों वर्ष तक टेंट के अंदर बैठना पड़ा था, उनको आज अपने घर के अंदर एक मंदिर के स्वरूप के अंदर विराजमान किया गया है, प्राण प्रतिष्ठा की गई है, और हमको लगता है कि यह विषय ਐਡਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਸਥਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣ ਪਾਲ ਦੇਵੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਰਾਮ ਛੋਟੇ ਹੋ ਗਏ। नहीं, इसमें कोई बड़े और छोटे की बात नहीं है। इसमें हमने देखा कि जो हमारे बहुत से संत समाज के लोग थे, वह भी उसमें प्राण प्रतिष्ठा में उन्होंने अपना योगदान दिया, अपनी आहुति प्रदान की, और पूरे देश के अनेकों अलग अलग जगत से जो लोग एक प्रतिष्ठा प्राप्त लोग थे, उनको निमंत्रण दिया गया, और उन लोगों ने बढ़ चढ़कर खूबसूरती के साथ, जोश के साथ, हर्षो उल्लास के साथ उस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के भागीदारी की और अपना आहुति दी और अपना योगदान दिया। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇੱਕ, ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਈਵੈਂਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ, ਉਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਰਾ ਦਰਦਰ ਆਪਣੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਔਰ ਜੇਕਰ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। देखिए इसमें दो प्रश्न निकल कर आते हैं। जब हम लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात करते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रधानमंत्री जो होता है वह जनता के वोटों से, जनता की इच्छा के अनुसार चुना जाता है, और तभी कहते हैं लोक राज लोक लाज से चलता है। तो जहां तक संसद भवन का सवाल है, तो संसद भवन में राष्ट्रपति का आगमन एक औपचारिकता के रूप में होता है। जब की भी साल का या किसी नई लोकसभा का पहला सत्र होता है, तभी राष्ट्रपति उसमें आते हैं, और राष्ट्रपति का जो अपना कार्यालय है वो राष्ट्रपति भवन में होता है, वहीं पर उनका निवास रहता है। और जो दूसरा प्रश्न आपने इसके माध्यम से उठाया कि क्या लोकतंत्र खतरे में है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे देश ने 25 जून 1975 के दौर में जो एक समय देखा था जब पूरे देश के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल लगाई गई थी, तो उस संदर्भ को ध्यान में रखते हुए अगर आज हम इस बात को कह सकते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, ये वाक्य बोलने की हमको आजादी है, यह इस बात को दर्शाता है कि भारत का लोकतंत्र खतरे में नहीं है। क्योंकि एक टाइम वो था जब ऐसा कहा जाता था, खींचो ना कमान को ना तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। कहने का मतलब यह है कि जो व्यक्ति की फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन थी उसके ऊपर पाबंदी लगाई गई थी, जो कि अनुच्छेद 19 के तहत भारतीय संविधान उसका नतीजा भी तो सामने था ना, सब ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਚੋਣ ਹਾਰੇ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਦਾ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਦਾ ਹਾਰ ਦਾ, ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਵੈਕਿਊਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੋਇਆ। जी जी, बिल्कुल ठीक बात कही आपने। तो ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। अगर कोई भी व्यक्ति इस लक्ष्मण रेखा को पार करेगा तो उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लोकतंत्र में नेता, नीति, नियत और नैतिकता, ये 4 पैमाने होते हैं। अगर नेता ठीक ना हो, अगर नीति ठीक ना हो, अगर नियत ठीक ना हो और नैतिकता के पथ पर आप ना चलें, तो आपको जनता जनार्दन अर्श से फर्श की दूरी को कुछ पलों में ही पूरा कर क्या प्रोडक्शन है जी, साउथ तो लेके वेस्ट, नॉर्थ तो लेके ईस्ट तक जी, इस वेले ਤੁਹਾਡੀ 6 राउंड ਦਾ ਜਦੋਂ इलेक्शन कंप्लीट हो चुका है? अगर हम इन जो प्रथम 5 चरण के आंकड़े भारतीय निर्वाचन आयोग ने हमारे समक्ष रखे हैं, उसके माध्यम से हमें देखने को मिलता है कि अब तक जो मत प्रतिशत है वह है 65.376%। 65.376% जो मतदाताओं ने मतदान किया है, जिसका फैसला, जिसका भाग्य विधाता 4 जून 2024 को हम सबके सामने होगा। तो उसको देख के ऐसा लगता है कि जो जोश भारतीय नागरिकों के अंदर मतदान को लेकर होना चाहिए था, जिस प्रकार का एक तैयारी, जिस प्रकार का आगाज भारतीय निर्वाचन आयोग ने एक उत्सुकता भरा माहौल प्रदान करने की कोशिश की थी, एक धरातल पर जो कार्य उन्होंने मतदाता में उत्साह भरने को किया था, उसका उतना परिणाम देखने को नहीं मिल रहा। वहीं दूसरी ओर हमारे पास दोनों तरह की स्टडीज हैं। हम ठोस रूप से नहीं कह सकते कि अधिक मतदान सरकार के पक्ष में होता है या विपक्ष के पक्ष में होता है, परंतु ऐसा अक्सर देखा जाता है कि मत के माध्यम से नागरिक, जनता अपना रोष व्यक्त करती है। अगर 65.376 मत प्रतिशत को मैं देखता हूं, तो ना तो मुझे अत्यधिक उत्साह दिखता है, ना ही मुझे अत्यधिक मायूसी दिखती है, परंतु व्यक्तिगत तौर पर हमको ऐसा लगता है कि अगर यह मत प्रतिशत कुछ दर्शाता है तो यह दर्शाता है कि आज भी 33% से अधिक लोग मतदान केंद्र पर नहीं गए। आज भी 33% से अधिक लोग इस पुण्य, पावन, पवित्र लोकतंत्र के मंदिर में अपना नतमस्तक होकर अपनी आहुति डालने से वंचित रहे। प्रोडक्शन ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਊਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਨਾਰਥ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ
कितने खड़ा है जी बीजेपी? जहां तक प्रिडिक्शन की बात आप कर रहे हैं तो हमको लगता है कि एक तरफ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है जिसमें कि मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी की भूमिका रहेगी। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि इंडिया ब्लॉक है जिसमें कांग्रेस और उसके सहयोगी दल हैं। दुख की बात हमको देखने को ये मिलती है कि जो सबसे बड़ी पार्टी देश की थी वो आज अपने इतिहास में सबसे कम सीटों पर चुनाव लड़ रही है। जहां एक ओर यह आत्मसमर्पण को व्यक्त करता है, वहीं दूसरी ओर इसके माध्यम से मतदाताओं में एक संशय पैदा होता है, एक दुविधा मतदाताओं के मन में निकल कर आ रही है। उसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं। बंगाल के अंदर हम देखते हैं कि ममता दीदी का राज है और ममता दीदी इंडिया ब्लॉक के साथ कदम ताल कर रही हैं, परंतु बंगाल की 42 सीटें ममता दीदी अपने दम पर लड़ रही हैं। कांग्रेस के लिए उन्होंने एक भी सीट नहीं छोड़ी। उसी प्रकार से हम देखते हैं दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी का परचम है, परंतु लोकसभा के लिए उन्होंने 4-3 की श्रेणी में सीटों का बंटवारा किया। हरियाणा में हम देखते हैं कि 9-1 के स्थिति से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में चंडीगढ़ की एक सीट गठबंधन के माध्यम से कांग्रेस को मिली। परंतु ऐसी क्या कारण रहे, ऐसी क्या परिस्थितियां रही कि साथ लगते हुए पंजाब के अंदर सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने इंडिया ब्लॉक की कांग्रेस पार्टी को गठबंधन से दूर रखा। अगर गुजरात में गठबंधन हो सकता था, अगर गोवा में गठबंधन हो सकता था, तो पंजाब में वह गठबंधन फायदा होगा इंडिया गठजोड़ ਨੂੰ ਕਿ नुकसान होगा? बीजेपी ਨੂੰ फायदा मिलेगा इस हालातों ਦੇ ਵਿੱਚ जो गुजर रहे ने? हमको ऐसा लगता है कि आज का जो ध्रुवीकरण चुनाव का है वह ऐसा नहीं है कि हम सांसद के चुनाव के लिए मतदान कर रहे हैं। आज जो मतदान हो रहा है, एक तरफ हमें ऐसा देखने को मिलता है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एक दूल्हे के साथ बारात लेकर चल रही है, वहीं इंडिया ब्लॉक एक ऐसी बारात लेकर चल रहा है जिसमें अपने आप में ही किसी प्रकार का संशय है, दुविधा है, क्योंकि उनके पास चेहरा नहीं है। पंजाब का बिना चेहरे के आगे बढ़ने के साथ जो मतदाता है वो दुविधा में है कि अगर मैं इंडिया ब्लॉक के लिए वोट करना चाहता हूं तो मैं कांग्रेस को वोट दूं, मैं आम आदमी पार्टी को वोट दूं, या फिर एक क्षेत्रीय पार्टी के रूप में अकाली दल के लिए अपने मत का प्रयोग करूं। क्योंकि हम देखते हैं चाहे अकाली दल की बात हो, चाहे आम आदमी पार्टी की बात हो, या फिर कांग्रेस की बात करें, तो पंजाब में ये तीनों पार्टियां जो आज चुनाव लड़ रही हैं वह चुनाव लड़ रही हैं किसान के बलबूते, वह चुनाव लड़ रही हैं पंजाबियत के बूते, परंतु कहीं ना कहीं वह चुनाव लड़ रही हैं मोदी के खिलाफ। तो जो एंटी मोदी वोट था वो 3 प्रमुख पार्टियों में बंटता हुआ दिख रहा है, और इन 3 पार्टियों में वोट जो बंट रहा है कहीं ना कहीं कुछ हद तक इसका फायदा अगर किसी को मिलेगा तो वह हमको लगता है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के तहत भारतीय जनता पार्टी जो सीट लड़ रही है उसके वोटों में बिखराव नहीं हो रहा, परंतु जो वोट उसके विपरीत पड़ना है, जो वोट उसके विपक्ष में पड़ना है, उसमें 3 जगह वो बट जाएगा। इस ਵੇਲੇ पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਦਾਵਰ ਨੇਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਚਾਰਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ श्रोमणी अकाली दल, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी। हमको ऐसा लगता है लोकतंत्र के इस महापर्व में, लोकतंत्र की इस भूमिका में, संवैधानिक पर्व के रूप में जो जनता है वही सबसे बड़ा एक किरदार निभाता है, वही सबसे बड़ी भूमिका निभाता है, क्योंकि जनता जनार्दन जो है वो राजा के रूप में अपना योगदान करता है। वह राजा जिस प्रकार से फैसला लेता है कि उसकी प्रजा में, उसके अपने कार्य क्षेत्र में, उसकी रियासत में किस प्रकार का भविष्य होना चाहिए, किस प्रकार की नीति होनी चाहिए, किस प्रकार की नीयत होनी चाहिए, वह जनता जनार्दन पर निर्भर करता है। पंजाब का वोटर किस ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ वोट पाउण जा रहा जी? पंजाब में देखिए चुनाव कोई भी हो, स्थानीय मुद्दे हमेशा हावी रहते हैं। चाहे बात आप करें ग्रामीण क्षेत्र की, चाहे बात आप करें शहरी क्षेत्र की। पंजाब जो राज्य है वह बाकी राज्यों से भिन्न है, क्योंकि इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। तो ना केवल जो हमारे डोमेस्टिक इश्यूज हैं उसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो एक सुरक्षा का विषय है उसको हम दरकिनार नहीं कर सकते। और हमको लगता है
कि जो भारत की एकता की बात है, भारत की अखंडता की बात है, वह उस मामले में सर्वोपरि रहनी चाहिए। रहनी चाहिए, जो आपकी ओपिनियन है ना। जी। लेकिन लोग जिन्होंने वोट डालना, वो किस ओपिनियन से वोट डाल रहे हैं? देखिए, जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं वह भी रहेंगे, राष्ट्रीय मुद्दे भी रहेंगे और अंतर्राष्ट्रीय पलड़ा मुद्दे भी किसका रहेंगे। भारी रहने वाला? आखिरी सवाल है जी। पलड़ा तो जनता का ही भारी रहेगा, क्योंकि जनता के, जनार्दन के हाथ में वो पावर है, उनकी उंगली के अंदर वो ताकत है कि वह फैसला करेंगे, ना केवल उनके सांसद का, ना केवल देश के प्रधानमंत्री का, अपितु भारत के भविष्य का फैसला जो है वह जनता की उंगली के माध्यम से होगा। जी, धन्यवाद डॉक्टर साहब ਤੁਹਾਡਾ। बहुत बहुत तो समाज धन्यवाद का रमन जी। आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों का कोटि कोटि प्रणाम, वंदन, अभिनंदन। ਤਾਂ ਛੇਵੇਂ ਚਰਨ ਦਾ ਰਾਉਂਡ, ਜਿਹੜਾ ਛੇਵੇਂ ਚਰਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਵੋਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ तमाम ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਘੱਟ ਵੋਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਨਿਰਾਸ਼ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਬੋਨਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ 70% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੋਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤੀ ਆ। ਪਰ 65% ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੋਟ ਦਾ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। तमाम ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਪਸੀਨਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਘੱਟ ਵੋਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਪਰ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਜਨਤਾ ਦਾ ਹੈਗਾ। 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ तमाम ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਲੜਾਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਰਸਸ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ तमाम ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧੰਨਵਾਦ।